Assalamu alaikum everyone. Now today I'm going to start a new topic that is graph of linear inequalities. This is a very important topic. Now I'm going to start it. So first of all, I'm going to share the screen. Right. Okay. So in the graph of linear inequalities, one of the most important and a slightly difficult topic for students. Uh, Before starting, you must uh, like and share and subscribe the channel. और बिफोर स्टार्टिंग में आपको बताता चलूँ कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वालिटीज जो है वो स्टूडेंट्स के लिए एक डिफिकल्ट टॉपिक के तौर पे समझा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ. आई होप you will get it easily. Okay, first of all, something you have to reminder, you can represent an inequalities on a graph. There are some important rules to follow. What is the rule? If inequalities is greater than or less than equal to, greater than equal to or less than equal to, it means boundaries points are also included, and we will show it by the solid line. We will boundary line must be a solid line like this. If we have a greater than or a lesser than equal to. If the inequalities is greater or less, the boundary line greater than or lesser than, it means boundaries must be uh, drawn by a broken line, dash line. Okay? And similarly, you are expected to shade unwanted region. This will leave the required region clear. अगर आप उससे जो है अनवांटेड रीजन्स को अगर आप जो है वो रिक्वायर्ड रीजन के तौर पे लेंगे, तो आप क्या करेंगे कि आप जो भी रिक्वायर्ड रीजन है उसके ऑपोजिट आप शेड करोगे. कैसे शेड करेंगे मैं आपको बताता हूँ. तो यू आर एक्सपेक्टेड टू शेड द अनवांटेड रीजन. दिस विल लीव द रीजन क्लियर. अच्छा, एक एग्जांपल हमारे पास है कि सिंपल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3y ग्रेटर देन 2 एंड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपके नॉलेज में होनी चाहिए. सबसे पहले जो है आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो वर्टिकल लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होती है. तो इस सारी चीज़ों को हमें देखना होता है कि अगर हमारे पास जो है कोई वर्टिकल लाइन है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ एक्सिस पे, और मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, दैन लाइन पासिंग थ्रू दी 1 2, तो इट मीन्स द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1, and if line passing through the 2, it means x equal to 2. If line passing through the -1 on x-axis, it means this is x equal to -1. It means equation of vertical line always equal to x equal to plus minus a. So you have to remember, if we have a vertical line, then equation will be x equal to plus minus a, or plus minus a real number. Real number means you can use decimal points as well. So if we have a horizontal line, like parallel to the x-axis, this is the y equal to something. For example, line passing through the y-axis at point 1, it means y equal to 1. If line passing through the -1, it means y equal to -1. So if we have a horizontal line that is parallel to x-axis, it means equation of line will be y equal to plus minus a. Okay. And similarly, if we have a line like exact at 45 degree, it means
the value of x and y will be same. If y equal to x, then the line passing through the same coordinate 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 and 10 10. So this equation is y equal to x, right? Similarly, if we have a negative gradient, for example, y equal to minus x, y equal to minus line passing through like this. This will be y equal to minus x. So boys and girls, when we start the inequalities, then we have to know this important information. Otherwise, we can't solve this type of questions. So I'm going to erase the screen and then start it again. So x greater than equal to 3, it means, first of all, line number 1, mention it, line number 1, that is x greater than equal to 3, but you have to take x equal to 3. X equal to 3 means you have to draw the line that will be parallel to y-axis, vertical line that will be parallel to y-axis, y equal to 3. Oh, sorry, x equal to 3. This will be x equal to 3. And this is the required inequality, x greater than equal to 3. Keep it in your mind. We shade the unwanted region. We always shade unwanted region. X greater than equal to 3, it means the required region is the right hand side, that is 4 5 6 around this. This is the required region, but we have to shade the opposite region like this. This one is your unwanted region. You have to shade this region. So remember to shade the unwanted region. So this will be x greater than equal to 3 means we have to draw a line x equal to 3 and then shade the unwanted region that is opposite to x greater than equal to 3. So x greater than equal to 3, that is equal to like this. We have to shade this region. Similarly, y greater than 2, y greater than 2. This is line number 2. So y greater than 2, it means you have to take y equal to 2. Y equal to 2 means you have to draw horizontal line that is parallel to the x-axis. So y equal to 2, this line will be y equal to 2. You have to mention it, y equal to 2, and the required region is y greater than 2. It means required region is above the line, but we have to shade below the line. Required region is greater than 2 means above the line, and less than equal to means below the line. If we have a line like this, greater than above the line and less than below the line. If line like this, greater is above the line and less than below the line. If line is vertical, then this is the greater than, this one is a less than. If we have a line horizontal, then greater than above the line and less than below the line. So y greater than 2, it means we have to draw a broken line that must be broken. So I'm going to erase it and going to draw a broken line. Line like this, broken line. It means boundaries points are not included. So we have to shade opposite to the required region. Required region is above the line, so we have to draw below the line like this. This is the below the line, right? Similarly, the next one, x plus y, line number 3, x plus y less than equal to 8. So you can draw direct this line, y x plus y equal to 8. It means we have to draw the line 8 to 8 on the x-axis and 8 on the y-axis. We have to join this line.
this is the shortcut. If x plus y equal to 2, you have to join 2 to 2. If x plus y equal to 4, then it means 4 to 4. So x plus y equal to 8. So we have to draw line x equal to 8 like this. लेकिन अगर आपको याद नहीं है, यू डोंट रिमेम्बर कि ये x प्लस वाई 8 to 8 है, तो आप y को सब्जेक्ट बनाएं और इसके बाद एक टेबल ड्रॉ करें कि y इक्वल टू 8 माइनस एक्स, और एक टेबल ड्रॉ करें और इस टेबल में x की वैल्यूज खुद से पुट करें। x इक्वल टू आप 1 रखोगे तो y विल बी 7। अगर x की जगह आप रखोगे 2 तो y विल बी 6, और x की जगह आप 3 रखेंगे तो y मस्ट बी 5। तो आप कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं, 0 1 2 3 4 वट एवर, जो आपके यहाँ पर एक्सिस में मौजूद है। एक्स एक्सिस में 0 to 8 है तो आप 0 1 2 भी ले सकते हैं, कोई भी 3 वैल्यूज लें। और इस ग्राफ को जो है 1 7, इसको आप प्लॉट करते जाएं। 1 1 to 7 ये पॉइंट आ गया आपके पास, 2 to 6 2 to 6, and similarly 3 to 5 3 to 5. When we draw this line, so we will get the required rank. तो मैं इसे आपको विजुअलाइज करके दिखाता हूँ कि कैसे हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो दिस विल बी line like this, line like this. So y x plus y less than equal to 8, इसका मतलब है कि हमें लाइन के नीचे वाला रीजन चाहिए, but we have to shade unwanted region. So above the line we have to shade above the line. So the you can check, you can watch this. The required region is unshaded. This is your required region. अगर आप इस तरीके से इसकी वर्किंग करोगे तो आप जरूर ये क्वेश्चन आसानी से स्कोर कर सकोगे इस क्वेश्चन में। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना कि अबव द लाइन मीन्स ग्रेटर देन, बिलो द लाइन मीन्स लेस देन। अगर लाइन वर्टिकल है तो राइट हैंड साइड ऑफ द लाइन इज ग्रेटर, एंड लेस देन साइड लेस देन इक्वल टू मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन। इसी तरह से अबव द लाइन ग्रेटर एंड बिलो द लाइन जो है वो लेस देन हम यूज करेंगे। और ट्राई करेंगे कि हम अपने रीजन को जो है अनशेड रखें, ताकि हम बाद में हम उसको जो हमारे पास रीजन है उसको इरेज करके हम सिर्फ रिक्वायर्ड रीजन पे शेड कर सकते हैं। तो अगर आप इस किसी भी रिक्वायर्ड रीजन के पॉइंट्स मालूम करना चाहते हैं तो ये वो पॉइंट्स हैं जो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, और इसको आप चेक भी कर सकते हो कि आपका रिक्वायर्ड रीजन जो है वो क्लियर, रिक्वायर्ड रीजन जो है वो करेक्ट है या नहीं है। तो हाउ टू फाइंड द करेक्ट रीजन, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, चेक करके हम देख लेते हैं इसे। मैं इससे पहले इसको इरेज करता हूँ ताकि आप इसको क्लियरली चेक कर सके कि योर रिक्वायर्ड रीजन इज correct or not. For example, you are taking a point like this one. ठीक है, this coordinate is 4, 3, 4, 3. So this is the inside the region. So if we check this one, x plus y lesser than equal to 8. So x plus y 4 plus 3 less than equal to 8, तो 7 less than equal to 8, तो this will be correct। ठीक है, अब अगर आपने लिखा y greater than 2, तो y की वैल्यू क्या आपके पास 3, 3 greater than 2, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब मैं लेता हूँ x greater than, अगर 3 लेते हैं तो greater than 3 और equal to 3। तो अगर आपके पास बाउंड्रीज इंक्लूडेड है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो डेफिनेटली आपने अगर इसको लेते हैं तो ग्रेटर 3 to 4 5 6 है, बट इक्वल टू 3 मीन्स 3 इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे तो 3 इक्वल टू 3, दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो रीजन्स आर सेटिस्फाइड। तो बॉयज एंड गर्ल्स, we can solve this type of question very easily if you practice some more questions. अब आइए अगर हम इसके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स फाइंड करते हैं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा।
जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उन पॉइंट्स उन जगहों पर मैक्सिमम मिनिमम के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो आप जो इक्वेशंस आपको कहा जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन, तो आप इसे सपोज कर सकते हैं कि लेट 2x+y इक्वल टू सी और c इक्वल टू 2x+y। लेकिन जरूर नहीं है सपोज करना, लेकिन अगर आप c के बराबर सपोज कर देंगे और एक टेबल जनरेट कर लें और जो भी पॉइंट्स आपके मौजूद हैं, जो इंक्लूडेड पॉइंट है, बाउंड्रीज पे पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होती हैं इसलिए हम इसको निगलेक्ट करेंगे। जो पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं, जो सॉलिड पॉइंट्स मौजूद है, जो बाउंड्रीज पर भी मौजूद है और इनसाइड द रीजन भी मौजूद है, तो हम उन पॉइंट्स पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इस सी पे पुट करेंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट भी 3 है, तो आपने इस इक्वेशन में c इक्वल टू 2x+y में आपने रखना है x की जगह 3 और y की जगह भी 3। तो 3 2 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 9। तो इसी तरह से जितने पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट्स की वैल्यूज जो कोऑर्डिनेट से आप पुट करेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि जो सबसे आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 13। तो इसका मतलब है मैक्सिमम विल बी 13। और अगर आपसे मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम वैल्यू जो आपके पास है दैट विल बी इक्वल टू 9। ये आपके पास मिनिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए आप जहन में रखेंगे जो लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं, जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो हैं, वो वहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप एक टेबल ड्रॉ करके आप मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। So it is important to note that the maximum or minimum values always occur at near the corners of the required region। चलिए एक सवाल की प्रैक्टिस में अभी और करवाता हूँ आपको ताकि इसका जो है कंफर्म हो जाए। ये एक आपके पास पेपर के क्वेश्चन है जो कि हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इट मीन्स दैट इज द वर्टिकल लाइन पैरेलल टू द x-axis. So parallel to the y-axis. So x equal to 1, we can draw this line like this. This is the line parallel to the y-axis. This is x equal to 1. So this is the line number 1, L1 that is equal to x equal to 1। पहले आप इसे ड्रॉ कर लें। अब ये देखें कि इसको शेड हमें किधर करना है। इज रिक्वायर्ड रीजन इज ग्रेटर देन, इसका मतलब है राइट हैंड साइड के भी वैल्यूज हमारे पास ग्रेटर है, लेकिन हम इसके ऑपोजिट शेड करते हैं तो दिस विल बी ऑपोजिट, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे इस लाइन के हम शेड करेंगे। तो रिमेंबर टू शेड द अनवांटेड रीजन। तो अनवांटेड रीजन जो है उसको ऑपोजिट साइड है। तो ये हमारे पास लाइन ड्रॉ कर दी हमने और ये आपका अनवांटेड रीजन को हमने जो है वो शेड कर दिया। अब आ जाए सेकेंड लाइन, y ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो y greater than equal to x means we will take y equal to x. This is the line number 2. तो y equal to x से मतलब है y और x से कोऑर्डिनेट सेम है, तो we can draw the line 1 1 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 and 10 10। तो ये आपके पास जो लाइन होगी दिस विल बी y इक्वल टू x। और इसका ग्रेटर देन यानी हमें ऊपर वाला रीजन चाहिए, लेकिन हम इसको शेड करेंगे नीचे वाले, बिकॉज ये बात आपने याद रखना है कि वी शेड अनवांटेड रीजन। तो ये आपके पास जो है x ग्रेटर देन है, तो ये आपके पास y इक्वल टू एक्स लाइन मैंने ड्रॉ की और उसके बाद दिस विल बी दी रिक्वायर्ड रीजन, जो कि रिक्वायर्ड रीजन नहीं है बल्कि अनवांटेड रीजन को हमने शेड किया। रिक्वायर्ड रीजन जो है अबव द लाइन है ना। थर्ड लाइन 4x+5y लेस देन इक्वल टू 40। तो आप इसके लिए बेहतर है कि 4x+y एक टेबल बना लें और उस टेबल में x और y की वैल्यूज पुट करें। जब हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो 4 0 + 5y इक्वल टू 40। तो बेहतर है कि पहले ही y को सब्जेक्ट बना लें। सो 40
तो वी कैन चेक इट के y इक्वल टू 40/5 दैट इज इक्वल टू 8। इसी तरह से जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 10 रखेंगे तो 4 × 10 40 एंड प्लस 5y इक्वल टू 40। ठीक है, तो 40 4 10 40 प्लस 5y इक्वल टू 40। 40 को आप उधर शिफ्ट कर दें तो 5y इक्वल टू 40 और ये 40 इस तरफ आके -40 दैट विल बी y इक्वल टू 0/5 दैट इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड वैल्यू इज 0। नाउ प्लॉट दिस वन 0 8 0 8, दिस वन इज अ 0 8 और सेकेंड वैल्यू 0 10। तो दिस इज दी 10 0, सॉरी 10 0 एंड ये आपके पास है, आप इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, आप इसको ज्वाइन कर देंगे। अब इससे कह रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू, यानी हमें लाइन के नीचे वाला पोर्शन चाहिए लाइक दिस, तो वी हैव टू शेड अबव द लाइन। अबव द लाइन जब हम शेड करेंगे तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड रीजन है वो अनवांटेड अनशेडेड आ रहे हैं। अब अगर आपको एग्जाम में कहा जा रहा है शेड करें रिक्वायर्ड रीजन को, तो आप इन रीजन्स को जो है वो ज़ाहिर है डेफिनेटली पेंसिल से लाइट शेड करेंगे, उसको इरेज करेंगे और जो रिक्वायर्ड रीजन है आप उसको शेड कर देंगे। अब अगर इसके अंदर कौन कौन से आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं तो आप इसको भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो क्योंकि ऑल लाइंस आर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेसर देन इक्वल टू, सो बाउंड्री पॉइंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड। अब अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो आपने जो है उसी मेथड को अप्लाई करना है कि आपने सबसे पहले जो है जो भी इक्वेशन आपको, जो भी एक्सप्रेशंस आपको दी गई है उसे आप कोशिश करें सी के इक्वल कंसीडर कर लें और उसके बाद एक टेबल बना लें। और अगर सी भी नहीं भी करते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन बेहतर है कि आप सी इक्वल टू, ताकि ये सी आप फाइंड कर सके जो मैक्सिमम और मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको बताया गया था कि पहले जो बाउंड्रीज के पॉइंट्स हैं जो करीब करीब हैं हम उन पे जो है वो फोकस करते हैं। एक पॉइंट आपके पास ये है, एक पॉइंट आपके पास ये है और एक पॉइंट आपके पास जो है वो 4,4 ये वाला जो नियरेस्ट दिस पॉइंट मौजूद है। इनको हमने यहाँ पे इनपुट किया x प्लस 10x + 3y, तो 10x + 3y। तो 10x की जगह आपने रख दिया 1 प्लस y की जगह आपने रख दिया 7। तो 10 + 21 इक्वल टू 31। तो इस तरीके से 31 आ गया। इस तरह से आप x और y की जगह 1 1 रखेंगे तो वी विल गेट 13। जब आप x और y की जगह 4 4 रखेंगे तो वी विल गेट 52। तो आपको यहाँ पर मिनिमम पॉइंट चाहिए, मिनिमम पॉइंट इज 13। ठीक है, तो मिनिमम के कोऑर्डिनेट होंगे 1,1। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यकीनन ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लीनियर इक्वालिटीज का ग्राफ जो है किस तरह ड्रॉ करते हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चंस में आपको दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एक में आपको लीनियर इनइक्वालिटीज फाइंड करने के लिए कहा जाएगा और एक में आपको शेड करने के लिए कहा जाएगा। तो ज़्यादातर केसेस में जो है वो शेड किया जाता है, तो मैंने आपको शेडिंग का तरीका बताया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे पॉज करके एक दो दफ़ा रिपीट करें और इसके प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस के पास पेपर से। दिस विल बी मोर इफेक्टिव फॉर यू। तो अब मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। तो ये ऑफ होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो बहरहाल आपने इसको प्रैक्टिस करना है और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में इसका आंसर भी कर सकते हैं। टेक केयर।